Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today we are here to discuss about our beloved niacinamide. This is one skincare active which I feel everybody should use because this I feel is the most skin type friendly ingredient out there. It suits maximum people irrespective of their age and gender. This is so beautifully tolerated by most of our skin types and it serves multiple benefits at the same time. Having said that, I do believe that there is a very small section of people who sometimes complain that their niacinamide is not working for them, and in some cases it is even giving them breakouts. So why is that happening? What is it that you are doing wrong with the application or introduction of this ingredient that instead of reaping the benefits, you are actually harming your skin? So today is the time I'm going to answer most of your basic questions around this topic. Also, I will tell you in the video which is the one that I'm using currently and why. Okay, so to begin with, I would like to believe कि आप में से maximum लोग इसके बारे में already knowledge रखते हैं, but in the interest of beginners, let me quickly try to explain to you what it is and what it does for your skin. Niacinamide is an active and water-soluble form of vitamin B3 that helps you tackle a lot of your skin issues at the very same time. You name it, whatever skin condition you may have, and niacinamide will help you fix that. अगर आपको acne pimples ज़्यादा होते हैं, niacinamide helps you fix that also. उनके चले जाने के बाद जो निशान पीछे छूट जाते हैं, उनको फेड अवे करने में भी niacinamide आपकी पूरी हेल्प करता है. आपके पोर्स ज़्यादा दिखते हैं तो उनकी अपीयरेंस को मिनिमाइज करने में भी आपकी हेल्प करता है. आपका बैरियर डिसरप्ट हो चुका है, उसको भी ये फिक्स करने में हेल्प करता है. यहाँ तक कि आपकी स्किन को यूथफुल दिखाने में भी ये काफी वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी एपिडर्मिस में जो केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, it helps you build that also. It helps your skin build the ceramides also that are basically responsible to keep your skin firm looking. साथ ही साथ अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन या मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम्स है, डार्क स्पॉट्स वगैरह से टैकल कर रहे हैं, तो उसको भी रिड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करता है. नाउ डिस्पाइट सो मेनी बेनिफिट्स, ऐसा क्यों है कि आप में से कुछ लोगों को इससे फायदा नहीं पहुंच पा रहा है? इसलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉमन क्वेश्चंस आंसर करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि किसी बिगिनर को आ सकता है. हाउ टू एक्चुअली अप्लाई इट एंड हाउ ऑफन यू मस्ट अप्लाई इट. आपको सिर्फ इसके 3 से 4 ड्रॉप्स ही सफिशिएंट होते हैं जिन्हें आपको पैट करते हुए जेंटली अपनी स्किन में लगाना होता है. नाउ थियोरेटिकली स्पीकिंग आप एक दिन में 2 बार इसको लगा सकते हैं, एएम और पीएम दोनों टाइम पे. बट मेरा एक्टिव्स को लेकर सीधा सा प्रिंसिपल ये है कि मैं दिन में एक बार से कोई ज्यादा एक्टिव लगाना कभी भी आपको एडवाइस नहीं करती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइसिनामाइड. अगर आप मुझसे परफॉर्मेंस के हिसाब से पूछेंगे तो एनीथिंग बिटवीन 2 to 5% लेवल ऑफ नाइसिनामाइड हैज द कैपेसिटी टू एक्चुअली परफॉर्म ऑन योर स्किन. लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो एक सेफ रेंज आपके लिए होगी समवेयर बिटवीन 5 to 10%. लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी यूज टू है, एक्टिव्स वगैरह पहले आप यूज कर चुके हैं या अभी यूज कर रहे हैं, आपकी स्किन को टॉलरेंस एक डेवलप हो गया है, तो आई थिंक आप 10 से 15% के ब्रैकेट के बीच में नाइसिनामाइड को यूज कर सकते हैं. Next question is how long will it take to show results on my skin? I'll be very honest with you guys. Depending on आपकी targeted problem क्या है, the time range will vary according to that. For example, अगर आपकी problem है acne, pimples या inflammation, तो हो सकता है आपको दूसरे तीसरे हफ्ते से ही initial differences दिखने शुरू हो जाएं. लेकिन अगर आपकी problem area है pigmentation, then it will depend how old is your pigmentation. For instance, अगर freshly developed scars हैं, आप acne, pimples के बाद जो हो जाते हैं हमें, उनमें कई बार हमें तीसरे चौथे हफ्ते से ही फर्क दिखने लगता है. लेकिन अगर हमारी पिगमेंटेशन काफी ज्यादा पुरानी है, स्टबन है, तो हो सकता है समवेयर बिटवीन 8 to 12 वीक्स के रेंज में आपको फर्क दिखना अपनी स्किन पे शुरू हो जाए. Now let's address another concern that may be concerning to some of you. कई लोगों को लगता है कि उनका नाइसिनामाइड उनके लिए कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, and in some cases they complain कि उनको ये यूज करने से ब्रेकआउट्स या एक्ने भी होने लगे हैं. अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा होता क्यों है. Just think about it logically. So जब भी हमारी बॉडी एक हीट एक तरह की प्रोड्यूस करती है या जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको फ्लश आउट करने होते हैं, तो वो इसी तरीके से बाहर आते हैं. You think for a minute, what does the appearance of an acne signify? It basically signifies the release of this टॉक्सिन फ्रॉम योर ब्लड वेसल्स, और उसी वजह से हमें एक्ने या पिंपल्स आते हैं. आपने सुना होगा हम इसे मेडिकली कहते हैं द फेज ऑफ पर्जिंग. कई लोगों के लिए ये 1-2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है और कई लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हफ्ते तक ये चल सकता है. बट देन दैट्स इट. दिस इज अ वेरी शॉर्ट फेज ऑफ टाइम. दिस इज दैट टाइम दैट योर स्किन नीड्स टू फ्लश आउट दीज टॉक्सिन्स आउटसाइड. आप कभी भी नोटिस करेंगे वंस यू हैव सर्वाइव्ड थ्रू द फेज ऑफ पर्जिंग, उसके बाद यू विल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस lesser and lesser lesions on your skin, which is a sign of
द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी स्किन। दूसरा रीजन ब्रेकआउट का ये हो सकता है कि मे बी नाइसिनामाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन को वो सूट भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो बाकी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, यू मे वांट टू चेक दोज ऑल्सो, मे बी उसमें से कोई इरिटेटिंग सा इंग्रेडिएंट हो जो आपकी स्किन को डिस्टर्ब कर रहा हो। तीसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लगे कि नहीं मैं तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे ही यूज कर रही हूँ फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, देन ये हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं दैट आर सपोज टू इंक्रीज द सेल टर्नओवर ऑफ योर स्किन। जनरली कई बार लोग रेटिनॉल वगैरह यूज करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यूजिंग दैट इज बैड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज रेटिनॉल इज वन सच एग्जाम्पल जो हमारी स्किन में सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। और जब भी हम ऐसी कोई चीज यूज करते हैं जो सेल टर्नओवर को बढ़ाती है तो वो टॉक्सिन ज्यादा फ्लश आउट करती है, वो एक्ने पिंपल ज्यादा बनाती है। तो मे बी इट्स नॉट द नाइसिनामाइड बट यू आर यूजिंग इट इन कॉम्बिनेशन विद रेटिनॉल एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दीज ब्रेकआउट्स। बट पूरी बात का सार ये है दैट यू डू नॉट हैव टू फ्रीक आउट इन दिस फेज ऑफ पर्जिंग। दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस विल लास्ट यू अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड टिल दैट टाइम जस्ट प्ले अराउंड विद द फ्रीक्वेंसी अ लिटिल बिट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज्यादा हो रहा है तो थोड़े दिन का ब्रेक दे दीजिए स्किन को, या फिर क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए, फिर वापस आपकी स्किन ठीक होती है तो फिर आप वापस थोड़े थोड़े डोजेज में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली आप खुद देखेंगे तीसरे चौथे हफ्ते के बाद से कि आपकी स्किन इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेगी। नाउ आई विल टेल यू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल यू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एक्टिव इन योर स्किन केयर, नॉट जस्ट नाइसिनामाइड बट एनी अदर एक्टिव ऑन दिस planet. There are two most important things that I cannot emphasize enough, and I feel they are constantly neglected because you guys must have heard it so many times that in your head it becomes repetitive. These are supremely important, and what I'm saying here is the frequency and the quantity of the active when you start using it initially plays a vital role. I cannot emphasize it enough. कोई भी एक्टिव चाहे वो कितना भी जेंटल हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, जब आप उसको शुरू करते हैं तो अपना पूरा टाइम लीजिए, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको मिक्स मत कीजिए। एटलीस्ट आपके दिमाग में पेशेंटली 3 से 4 वीक्स की विंडो इजीली होनी चाहिए टू टेस्ट आउट दैट प्रोडक्ट। इन द वेरी फर्स्ट वीक आप उसको सिर्फ 2 बार ही लगाइए 3-3 दिनों के गैप में। सेकेंड वीक से आप उसको अल्टरनेट डे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पे कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आ रहा है तो। और थर्ड या फोर्थ वीक से आप उसको दिन में 1 बार कर सकते हैं, एंड बाय द टाइम थर्ड या फोर्थ वीक आएगा तब तक आपकी स्किन उसको इजीली अच्छे से एक्सेप्ट कर चुकी होगी। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करें जब आप नाइसिनामाइड लगा रहे हैं तो, क्योंकि एक तरफ से आप नाइसिनामाइड यूज कर रहे हैं अपनी पिगमेंटेशन और मेलाज्मा को घटाने के लिए, तो दूसरी तरफ अगर आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उसमें मेलेनिन की एक्टिविटी रिड्यूस कैसे होगी? आप एकदम उसका कॉन्ट्ररी कर रहे हैं। तो इसलिए हर सुबह आपको SPF लगाना ही लगाना है विदाउट फेल, नो मैटर हाउ बोरिंग इट हैज स्टार्टेड टू साउंड इन योर हेड, बट यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप योर SPF in the morning. Now let me tell you about the niacinamide serum that I have been using on my skin for a couple of weeks now, and I think my skin is responding well to it. The one that I'm talking about is by the brand Dermaco. This is their 15% niacinamide serum with zinc PCA, which is targeted to help you fade away your acne scars. This I think they must have launched about 1 to 2 months ago at the max. Then they sent me this last month. They wanted me to try it out. You guys know that I keep trying out a lot of Dermaco products. So I did try it out. Now in the beginning I was not sure because मुझे लगा कि 15% पता नहीं कैसा सूट होगा या मुझे नहीं होगा, but luckily for me my skin responded really well to it और अभी भी मुझे अच्छा रिजल्ट ही दिख रहा है। मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ इसको कंटिन्यू करने की, और साथ में आई थिंक आई माइट जस्ट ऑर्डर अनदर बॉटल फॉर माई मॉम बिकॉज उनको काफी ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है चीक्स पर, सो आई माइट गिफ्ट वन टू हर ऑल्सो। नाउ व्हाट गॉट मी क्यूरियस व्हेन आई डिसाइडेड टू गिव दिस अ ट्राई इज द फैक्ट कि पहली बार मैंने किसी इंडियन स्किन केयर ब्रांड को 15% के कॉन्सेंट्रेशन पे नाइसिनामाइड बनाते देखा है, क्योंकि यूजुअली या तो मुझे मार्केट में 10 मिलता है या 20 मिलता है। ना 20 आई थिंक इज समटाइम्स टू मच, तो 20 मैं ना यूज करती हूँ ना मैं किसी को बोलती हूँ। बट मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर नहीं है और मेरी ही तरह आपकी भी स्किन यूज टू है ऑफ यूजिंग एक्टिव्स, तो आप 15% पे बेझिझक होके ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द फॉर्मूला इज रियली नाइस। सबसे पहली बात यह है कि इसमें फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको ये कंसर्न होता है, तो इस प्रोडक्ट में आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी, आप इसको बेझिझक ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स आर वंडरफुल। दे आर स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ एमोलिएंट लाइक प्रॉपर्टीज। आपकी स्किन को वो ड्राई नहीं करते बल्कि उसको और ज्यादा फर्म और बाउंसी और यूथफुल बनाते
आते हैं। तो ऑब्वियसली अब मैं एक एक के बारे में बात करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, देयर इज नो नीड फॉर दैट। लेट्स फोकस ऑन द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि शुरू के जो 5 से 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की मेन कॉम्पोजिशन दिखाते हैं, वो ही हमें बताते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है। Now, सबसे पहले यहाँ पे है नाइसिनामाइड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑब्वियसली दैट इज 15%। सेकेंड है इसमें प्रोपेंडियोल, जो कि एक मच सेफर और बेटर ऑल्टरनेटिव है टू प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जो कि समटाइम्स कैन इरिटेट अ फ्यू पीपल स्किन, बट दिस वन ऑन द अदर हैंड इज वेरी नरिशिंग। ये एक अमोलियंट भी है, सॉल्वेंट भी है, ह्यूमेक्टेंट भी है, ये आपके स्किन के बैरियर को इनफैक्ट सपोर्ट करता है, तो ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद नंबर 3 पे जिंक पीसीए है, जो कि विजिबली आपकी जो एक्सेस सीबम एक्टिविटी हो रही है स्किन के अंदर उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट अप इट हैज ब्यूटिलिन ग्लाइकोल, जो कि यहाँ पे विस्कोसिटी को डिक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। इट वर्क्स एज अ सॉल्वेंट और ये मेक श्योर करता है कि सारे जो कंपाउंड्स हैं आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो पा रहे हैं और अच्छे से स्किन पे परफॉर्म कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अप इट हैज फेलोडेंड्रन एमेरेंस बार्क एक्सट्रैक्ट, जो कि एक ईस्ट एशियन मेडिसिन है जिसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर इसमें थोड़ा ग्लाइकोलिक एसिड भी है, जो कि हम सब जानते हैं कि एक जेंटल स्किन एक्सफोलिएंट होता है और हमारे जैसी स्किन टाइप्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। उसके अलावा इसमें आपको एलो लीफ जूस और एलेंटॉइन भी मिल जाएगा, जिसमें क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं और हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज भी हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इट हैज अ बंच ऑफ मिनिमम 10 to 15 स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स, जो आपकी स्किन को नरिश रखेंगे, उनको ड्राई बिल्कुल नहीं करेंगे और आपकी स्किन के बैरियर को सपोर्ट करेंगे। अनदर थिंग इज आई फील कि इसका टेक्सचर सुपर अल्ट्रा लाइट वेट है, जस्ट लाइक वाटर, इट टेक्स सेकंड्स टू एब्जॉर्ब इन योर स्किन। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, आपको चिपचिपे सेरम्स यूज करना या हेवी सेरम्स यूज करना पसंद नहीं है, तो दिस वन आई एम श्योर यू गोना लव। इन अ नटशेल इफ आई वर टू सम इट अप, आई वुड से अगर आप बिगिनर हैं आप 10% से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह आपकी स्किन यूज टू है ऑफ यूजिंग अदर एक्टिव्स, then you can definitely give this one a try also. This is going to help you with major severe pigmentation issues also, provided you introduce it and use it the right way, exactly how I just told you in this video. By this time, you guys already know that I use a lot of Dermaco products even in my personal life. Not just that I like the products for the products, but overall the brand also I really like working with, because there is a certain level of transparency I feel with the brand. They always display their entire list along with the percentage of every single active that they've used, not just on the website but also on the packaging right here. Also these days I've noticed that they have started to take their customer feedback quite sincerely, and agar unko ek relevance feedback milta hai, they do not hesitate improvising on the formulas. Like I'm so happy that they are almost on their way on making most of their products fragrance free, which used to be such a big concern among so many people, but now they have tried to work on it और बहुत सारे formulas उन्होंने उस हिसाब से revise भी करे हैं। If you wish to buy any of the Dermaco products, they are widely and easily available on most popular e-commerce platforms of our country like Amazon, Nykaa, Flipkart, and also on their exclusive website, which is www.thedermaco.com. However, if you want to avail an additional 20% off on this purchase, तो आप directly उनकी website से जाकर जब खरीदेंगे और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे विच इज मीनाक्षी20, तो आपको एमआरपी पे 20% ऑफ भी मिलेगा। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, जो भी परचेज लिंक्स होंगे, सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। That's it for today's video, guys. I really hope that this was of help to you. If this was, then please give me a big fat thumbs up. And if you're new here, then please do subscribe before leaving this channel for more such videos. I'm going to meet you very soon in my next video. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.